हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती है, तो आज हम उनकी जयंती मनाएंगे। सबसे पहले मैं सर्वोदय स्कॉलर्स के टीचर्स को बुलाना चाहूंगी ताकि वो आए, दीप प्रज्वलित करें और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पुष्प समर्पित करें। Thank you so much. सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। Today we are gathered here to celebrate the birth anniversary of a legendary Indian poet, Rabindranath Tagore. I want to share something about Rabindranath Tagore. First of all, I want to start with his famous poem, which title is नहीं मांगता। नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से मुझे बचाओ, नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से मुझे बचाओ, प्राण करो विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना ही भगवान करो। नहीं मांगता दुख हटाओ, नहीं मांगता दुख हटाओ, व्यथित हृदय का ताप मिटाओ, दुखों को मैं आप ही जीत लूं, दुखों को मैं आप ही जीत लूं, ऐसी शक्ति प्रदान करो, ऐसी शक्ति प्रदान करो। जितना ही जीवित रहूं मैं, इतना ही भगवान करो, कोई जब ना मदद को आए मेरी, हिम्मत टूट न जाए, जग जग धोखे पे धोखा दे, जग जग धोखे पे धोखा दे और चोट पे चोट लगाए, अपने मन में हार न मानूं, ऐसा नाथ विधान करो, ऐसा नाथ विधान करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना ही भगवान करो। नहीं मांगता हूँ प्रभु, नहीं मांगता
मेरी जीवन नैया पार करो, पार उतर जाओ अपने बल, इतना ही करतार करो, पार उतर जाओ अपने बल, हे भगवान इतना करो। नहीं मांगता हाथ बटाओ, मेरे सर का बोझ घटाओ, अपना बोझ अपना संभाल लूं, अपना बोझ अपना संभाल लूं, ऐसा बल संचार करूं, ऐसा बल संचार करूं। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना ही भगवान करूं, सुख के दिन में शीश नवाकर तुमको आराधूं, सुख के दिन में शीश नवाकर तुमको आराधूं, करुणा कर ओ विपत्ति के अंधकार में, जगत हंसे जब मुझे रुलाकर, जगत हंसे जब मुझे रुलाकर, तुम पर करने लगूं न संचय, यह विनती स्वीकार करो, यह विनती स्वीकार करो। इतना ही भगवान करो, इतना ही भगवान करो। Rabindranath Tagore was a Bengali polymath who worked as a poet, writer, playwright, composer, philosopher, social reformer, and painter. He received Bengali literature and music, as well as Indian art with conceptual modernism in the late 19th and early 20th century. This exceptional personality was born on the 7th of May in 1861 at Dharamshala, Kolkata. But as per Bengali calendar, Rabindranath Tagore's Jayanti is celebrated on 25th day of Vaishakh, which is going to occur on 9th of May 2023 in this year. This will be 162nd birth anniversary of Rabindranath Tagore. He was the youngest son of Maharshi Devendranath Tagore and Sarada Devi. He had a great dislike for a schooling of the orthodox kind. In 1871, he was sent to England to study. He wrote poetry as 8 years old. At the age of 16, he released his first substantial poem under the presidium Bhanu Singha, The Shun Lion, which were researched upon by literature authorized as long-lost classics. By 1877, he graduated to his first short stories and dramas, published under his real name. He wrote around 2,213 songs and painted approx 3,000 paintings. Like Rabindranath Sangeet. Gitanjali, a collection of poetry, the most famous work of Rabindranath Tagore. It is published in India in 1910. There are 157 poems in this book. All the poems are in Bengali language. Rabindranath Tagore received the Nobel Prize in 1930 for Gitanjali. He also wrote many dramas. Visarjan is probably the best drama work of Rabindranath Tagore. And Bhikharini is the first short story. There are many quotes of Rabindranath Tagore. They wrote many poets, like one is my favorite. Clouds come floating into my life. Clouds come floating into my life. No longer to carry rain, no longer to carry rain or usual storm, but to add color to my sunset sky, to my sunset sky. He even composed National Anthem of India's Jan Gan Man and Amar Shamar Bangla of National Anthem of Bangladesh.
He was probably known as Bird of Bengal, and people used to call him Gurudev. Rabindranath Tagore was also awarded knighthood for service to literature by King George V in 1915. But he returned the knighthood title to the British government to protest against the Jallianwala Bagh massacre. This incident shows that he was also active in politics. He wrote some works for patriotism. Really, he was certain a man of many talents. At last, I finished my speech with his famous line related to Gitanjali. जब हम विनम्र होते हैं, तब हम महानता के सबसे नजदीक होते हैं। जब हम विनम्र होते हैं, तब हम महानता के सबसे नजदीक होते हैं। आस्था वो पक्षी है जो भोर के अंधेरे में भी उजाले को महसूस कराता है। कलाकार प्रकृति का प्रेमी है। कलाकार प्रकृति का प्रेमी है, अतः वो उसका दास भी है और स्वामी भी। फूल भले ही अकेला होता है, फूल भले ही अकेला होता है, लेकिन वह कभी भी कांटों से ईर्ष्या नहीं करता है। That's all from my side. Thank you. अब मैं सोनम मैम को बुलाना चाहूंगी, वो आए और हमें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ बताएं। सोनम मैम कम। Good morning, respected principal sir, my colleagues, and my dear children. First I wish you all a very happy Rabindra Jayanti. I am here today to speak a few words about Rabindranath Tagore. और इसकी शुरुआत मैं उनकी एक कविता से करना चाहूँगी। मन जहाँ डर से परे, मन जहाँ डर से परे है, सिर जहाँ ऊंचा है, ज्ञान जहाँ मुक्त है और जहाँ दुनिया को संकीर्ण घरेलू दीवारों से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं गया हो, जहाँ शब्द सच की गहराइयों से निकलते हैं, जहाँ थकी हुई प्रयासरत बाहें त्रुटिहीनता की तलाश में, जहाँ कारण की अस्पष्ट धारा है जो सुनसान रेतीले मृत आदत के वीराने में अपना रास्ता खो नहीं चुकी है, जहाँ मन हमेशा व्यापक होते विचार और सक्रियता में तुम्हारे जरिए आगे चलता है और आजादी के स्वर्ग में पहुंच जाता है। ओ पिता परमेश्वर, मेरे देश को जागृत बनाओ, ऐसी कविताएं टैगोर जी ही लिख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान भारतीय उपन्यासकार, चित्रकार, समाज सुधारक, साहित्यकार और अध्यापक थे। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। रविंद्रनाथ जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। उनके जन्म की वर्षगांठ को हर साल उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। वे एक बंगाली परिवार से थे। उन्हें बचपन से ही कविताएं लिखने का शौक था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा स्कूल से ली और फिर वे पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। रविंद्रनाथ जी ने अनेक कहानियां, नाटक, कविताएं, रचनाएं और उपन्यास लिखे। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला गुरुदेव जी की रचनाएं थी। उनकी रचनाएं दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जिनकी कुछ लाइनें मैं कहना चाहूंगी। Peace my heart, let the time for the parting be sweet. Let it not be a death, but completeness. Let love melt into memory and fade into song. Let the fly through the sky in the falling
the wings over the nest. Let the last touch of your hand be gentle like the flower of the night. Stand still, oh beautiful, end for a moment, and say your last words in silence. I bow to you and hold up my lamp to light your birthday. रविंद्रनाथ टैगोर। सन 1913 में उन्हें उनकी रचना गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो देश के सांस्कृतिक दूत थे जिन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति के ज्ञान को फैलाया है। वो अपने समय के एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत महान काम किए। कविता लेखन के क्षेत्र में वो एक उगते सूरज के समान थे और ऐसे व्यक्ति के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। जिनकी पावन रचनाओं को सुन हृदय में नाचता मोर है, जिनकी पावन रचनाओं को सुन हृदय में नाचता मोर है, साहित्य को माली बनकर जो सींचे, उनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर है। बहुत ही अच्छी बात कही है कि खुश रहना बहुत सरल है लेकिन सरल होना बहुत मुश्किल है। कि खुश रहना बहुत सरल है लेकिन सरल होना बहुत मुश्किल है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, यह तो एक आप लोग सभी को रविंद्रनाथ टैगोर जी की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इसके साथ मैं उनकी एक कविता प्रस्तुत करूँगी। छोटी सी मेरी बिटिया सखियों की पुकार सुनो, छोटी सी मेरी बिटिया सीधी के रास्ते निचले तले की ओर उतर रही, सीधी के रास्ते निचले तले की ओर उतर रही। अंधेरे में डरती डरती रुक रुक कर, अंधेरे में डरती डरती रुक रुक कर, हाथ में था दिया, हाथ में था दिया, आंचल से ओढ़ करके, आंचल से ओढ़ करके सावधानी से चल रही थी, आंचल से ओढ़ करके सावधानी से चल रही थी। मैं था छत के ऊपर, मैं था छत के ऊपर, तारा खचित चैत मास की रात, तारा खचित चैत मास की रात थी। अचानक बिटिया की रुलाई सुनकर, अचानक बिटिया की रुलाई सुनकर मुझे देखने गया दौड़कर, मुझे देखने गया दौड़कर। सीढ़ी से जाते जाते, सीढ़ी से जाते जाते हवा में उसका दिया बुझ गया था, हवा में उसका दिया बुझ गया था। पूछा उससे क्या हुआ बामी, पूछा उससे क्या हुआ बामी। नीचे से रोकर उसने कहा मैं खो गई, नीचे से रोकर उसने कहा मैं खो गई। तारों से भरी चैत मास की रात में, तारों से भरी चैत मास की रात में, छत पर लौटकर मन में आया आकाश की ओर देखकर, छत पे लौटकर मन में आया आकाश की ओर देखकर। मेरी बामी के सामने, मेरी बामी के समान और कोई एक लड़की मानो,
मेरी मामी के समान कोई एक लड़की मानो। नीलांबर के आंचल में ढककर, नीलांबर के आंचल में ढककर दीप शिखा को बचाती हुई अकेली, दीप शिखा को बचाती हुई अकेली चली जा रही थी, चली जा रही थी। धीरे 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 अगर बुझ जाता वो प्रकाश, अगर बुझ जाता वो प्रकाश, अगर अचानक रुक जाती वह, तो सारा आकाश में उठता मैं तो हो गया था, मैं तो हो गया था। मैं अपनी वाणी को यहाँ कहीं समाप्त करना चाहूंगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देता है, भीड़ साहस तो देता है लेकिन पहचान छीन लेता है, पहचान। आप सभी से भी मैं एक बोलूंगी कि आप लोग भीड़ का हिस्सा ना बने, यूनिक करें बट क्राउड बने।